मेरी आवाज अब हेलो। तक आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ काफी लाउड और क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू। ओके। Dear participants, like Professor Rajmohan in this workshop is taking a workshop on research methodology, and on behalf of Department of University, you have accepted our invitation to be a resource person for this workshop. Thank you so much. Now I just want to uh, this workshop for the next step. Thank you so much. हेलो। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी सबको? डॉक्टर साहब आवाज़ सुनाई दे रही? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है क्लियरली। जी, ओके ओके। सो लेट्स बिगिन। Dear participants, our today's resource person is Professor Braj Bhushan, and he is going to deliver his lecture on tools and techniques for behavioral studies. I think am I right, sir? This is your today's Yeah, it's talk. bio-behavioral, but it's okay. Okay, tools and techniques for bio-behavioral studies. So, dear participants, Professor Braj Bhushan is professor and head at Department of Humanity and Social Science, IIT. He served also in IIT Guwahati and has been visiting professor in Kyushu University, Japan. He has actively worked with National Task Force project with ICMR, and his main area of work is cognitive neuropsychology, cognitive ergonomics, trauma psychology, and he has been also worked with a team named Brain-Based Intelligence Test, and some prominent name of the team, Professor J.P. Das, Professor U.N. Das, and Professor Prakash Kalkania. Professor Braj Bhushan has created many other tests and assessment tools in the area of psychology and neuropsychology and cognitive science. He has also developed assistive application for children with dyslexia and dysgraphia. He has got many fellowships, such as Fellow of Shastri Indo-Canadian Institute and Sri Devraj Chair, IIT Kanpur, Common Future Fellowship
from Volkswagen, Germany. Got more than 10 awards in many areas and published 4 books up to now, print from the publication house of Printing Hall and Sage Publication. And he has more than book chapters in several edited volumes of report. He has published approximately 50 papers in several journals of international report. And other than this, he has produced a number of articles in conference proceedings, blogs, newspapers, symposia, and seminars. Up to now, he has supervised 2 PDF students. He has produced 8 PhDs, and there are several MTech theses that he has supervised. So this is a very brief introduction about himself. With this note, I would like to request Professor Braj Bhushan to start his delivery. But before starting, I would also मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक बहुत ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन है. हम लोग मित्र रहे हैं काफी पुराने समय के. ये बता दूं कि लोगों ने ग्रेजुएशन और पीजी एक साथ हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया और एक ही हॉस्टल में रहे. करीब 6-7 साल तक हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे और आपके साथ को हम लोगों ने काफी एंजॉय किया है. तो ये भी एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ. तो इट इज नाउ अप टू प्रोफेसर Braj Bhushan. Sir. Thank you, Professor Dhananjay ji. Thank you, Professor Anubhuti Dubey ji. Am I audible? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay. You will have to allow me sharing my screen so that I can show you the PPT that I want to share with you all. Before that sharing begins, it is my privilege to be part of this August gathering. In fact, I saw the list of speakers and I was talking to Dhananjay sir this morning as well, that he has made an elite panel of speakers, and I really feel delighted to be part of this endeavor, especially because we as fellow social scientists have the responsibility of not only sharing with you all what things are going on in the contemporary world of research, but it also is an opportunity for us to learn something, to learn what you all are doing and to share with you what is happening in corresponding areas. Before I continue with my talk, just give me a feedback. Would you like to have a talk only in English, only in Hindi, or a mix of English and Hindi? So, Dhananjay sir, you need to give me a feedback. Okay, sir. It will be only in English and it will be a mixed type. Both are good. Okay. So I'll make a mix. Is that what you are suggesting? Yes, sir. Okay. Great. So I'll do that. I'll just share my screen with you all. The topic that I have chosen is the tools and techniques for biobehavioral studies. The reason I thought that this will be an appropriate subject to interact with you all is that we come across large number of behavioral assessment tools. Predominantly, that is what is used in psychology, especially in this country, and within this country also in this part of the country. So I wanted to share with you that if you think of working on variables which are of importance for a behavioral scientist, or if you want to stretch it and make it something of significance for the whole lot of social scientists, my humble submission is that we cannot and should not be ignoring the biological side of it. Why do I say so?
till now, if you look at the screen, no, you have human behavior, and we have a behavioral assessment tool. Lastly, it would be some kind of questionnaires, schedules, inventories, based on which we come forward with a score. And again, we subject those scores to the data analytic techniques, and we come forward with some significant findings. This is, by and large, what happens in this part of the country. I must say that it happens in mostly, larger part of Asia rather. But when you look at people beyond social sciences, then you realize that their scientific temperament is far, far, far ahead of what we have been brought ourselves to, or we have been bringing ourselves to, or we have been reducing ourselves to. So my whole discussion for today is that fine, make a colorful image of the world so that it imitates the real world. Okay, the pencil sketch that you see of human being, okay, is only a pencil sketch. It doesn't represent the full truth. So the full truth of the body would be something like this. And psychology for years have been talking about the brain behavior aspect. I have chosen something that has to do with what we call as emotion or affective processes. In Europe, nowadays they call it emotion sciences. And if you go to the area of engineering, especially those who are in the area of machine learning, those who are in the area of artificial intelligence, those who work in the area of they use the word affective computing. Okay, so I have chosen this as a broader aspect. So I will be concentrating exclusively on affective process, and that too within affective process I have chosen to speak only and only on facial expression as a case study, right? But then my attempt is to make you travel. The trajectory would be that we will start from behavioral, and then we go to pure what we call geometric analysis, to neural behavioral biological analysis, and again complete the loop connecting the biological to the behavioral aspect. So this is the loop that I want to create at the end of 1 hour. Paul Ekman is of course known to all of us. He has talked about n number of things that has to do with emotion, and I would be exclusively talking about changes in the behavior, that too with respect to expressed behavior. And expressed behavior, either you can take face or you can take the gestures and the postures. This is what is phenotypically available. The rest all is what goes within the brain. Okay. The reason I thought that I'll talk to you about this is also the fact that large part of our communication is through facial expression, 55%. This is what Mehrabian claimed. And if you look at the domains, research domains where you find people working in affective science, affective neuroscience, or affective processes per se, you will find people in behavioral sciences. We, the psychologists, come as part of the behavioral sciences larger domain. Pattern recognition, which is a part of both electrical engineering and computer science and engineering. Computer vision, which is again part of both, and the buzzword of the current time, that is artificial intelligence. What I would like to begin with is exclusively psychological, and then gradually making a mix of psychological and the engineering tools, then moving on to the medical application. And the primary reason once again is that you cannot be conducting the hardcore what we call biological techniques on all the participants. So you need behavioral tools. But the kind of behavioral tools that we use, most of them have been statistically validated, okay, but we don't know how it behaves when it is exposed to the brain, or rather I should say that when the brain is exposed to this stimuli, how the brain works. So
because this is a program which has to focus on tools and on methods basically. So what I'll also try to do is to help you connect the kind of a statistical tool that we are familiar with as psychologists and the kind of statistical tools which are adopted in other domains of knowledge. So the names would vary. I'll try to connect those gaps as far as possible. Whenever you feel that I should switch to English, Hindi, or I should make a mix, just intervene and let me know that you should make a mix. Else I'll continue in only one language. Right. So if you look at the focus of what psychologists have been doing, we find primarily psychologists who are working with faces, expressions. I'm again repeating that I'm using facial expressions exclusively as a case study. And I want to share the journey that I followed, so that to tell you that how methodologically things can be improvised. So the predominantly you will find in psychology for the recognition task, labeling and matching are the only two options. You are shown a face and you are told, what is this? Which is this emotion? Or I show you two or more than two faces, one target face and other are the response faces, and you have to match which of these responses matches with the which of these one matches with the target image. The other that you find in psychology being adopted is the rating of the intensity, and mostly you will find the 5-point Likert scale, which is something that makes psychologists happy. Some of the psychologists you will also find who would go beyond this, and they will like to seek the semantic information. But scientifically, if you look at it, this is only the approach that is adopted for the purpose of acquisition of data. Scientifically, if you look at the nature of such studies, there is still a bipolar world, scientific world, where you have to decide whether you are going to work with a static stimuli or a dynamic stimuli. एक photo होना चाहिए या video होना चाहिए, static versus dynamic. Second, and the more major theoretical issue that has survived for so long, whether to consider affect or emotions as a continuous outcome or as a discrete process. Okay, you will find a whole lot of debate on this. And third and most important, what method do you use to extract the information? Okay, so I will focus on the different kinds of extraction methods that we used in a set of our studies, where we have gone for rating of intensity, where we have gone for labeling of the emotion, where we have also tried to make a mix of static versus dynamic. Okay. Now, make a shift. Earlier we were talking about what is the predominant method adopted by psychologists. Let us look at the predominant method adopted by engineering sciences people. Remember, I am taking only those who work on image-based analysis. So they also work on facial expression, it's recognition, but their idea is to work on system-supported recognition. Unlike psychologists who will have a set of participants and then they will ask them to do the task. Okay, engineers would go for a system-supported recognition. Okay. Now, if you look at the current scenario, when you go to an airport, when you go to a shopping mall, when you go to any area which is supposed to be far more secure, you would realize that n number of cameras are put at place. Okay, mostly those are CCTV cameras. Okay, some of them are FR cameras, face recognition cameras. This is an upgraded, sophisticated version of the camera. But then at the back end, you realize that there is a human interface. Somebody looks at the output of those cameras. Okay, so this is something which is interesting, and therefore we as psychologists, if you have to walk along with the engineering sciences, then we need to understand
what is being taken into account by engineers when they work on the system supported recognition of expressions. And we need to teach them also what, as psychologists, we have been able to find out. What engineers primarily focus is basically the image-based analysis, and therefore they go for an extraction of the visual information. So they extract the visual information, unlike we as psychologists who say that you look at the face and then you label it or you match it. Okay? बोलते हैं ना कि आप इसको पहचानिए ये कौन सा इमोशन, या एक इमेज दिखलाते हैं और नीचे कुछ और इमेजेस, एक या एक से ज्यादा इमेज डालते हैं और बोलते हैं इसमें से कौन टारगेट इमेज से मैच करता है। So ये लेबलिंग और मैचिंग का डिफरेंस है। The other important thing what engineers do, that they do not have participants, so they want their software, okay, to extract the visual information. Now how would the software know what to look at and what not to look at? है ना, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि चेहरे पे क्या देखें क्या ना देखें? तो हम साइकोलॉजिस्ट का ये काम है कि हम उनको बताएंगे कि हमारे बिहेवियरल स्टडीज के आधार पर हम कैसे इंडोर्स कर सकते हैं कि मशीन को क्या देखना चाहिए और किन चीजों पर समय बेकार नहीं करना चाहिए, समय जाया नहीं करना चाहिए। सो ये लबोलबाव है ना कि क्यों मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक बायो बिहेवियरल अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें टूल्स और टेक्निक्स का प्रीडोमिनेंस होगा। सो इफ आई ऐड द बायोलॉजिकल साइड ऑफ इट, मान लीजिए कि हमने सीसीटीवी का इनपुट लिया या हमने किसी भी कैमरे का इनपुट लिया, तो उसका यूज क्या होगा? फिर एक तो बहुत इजी लगता है देखने में कि भाई एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस के रूप में यूज होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इससे फेमिलियर होंगे। जैसे मेडिकल साइंसेस में एक बहुत बड़ा इशू है कि पेन का सेंसेशन जो है ना, दर्द का एहसास जो है, हु एक्सपीरियंसेस पेन एंड टू व्हाट लेवल, है ना, क्वांटिफाई कैसे करेंगे? और पेन का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके दांत में दर्द हुआ या कहीं कोई कट आ गया, कोई ऑपरेशन हुआ, तो सीडेटिव की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितने दवा के डोज पर आप कहेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब अब मुझे दर्द का एहसास नहीं है? और ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। सिमिलरली आप देखिए जैसे अभी कोविड का टाइम था, एक छोटा सा विजुअल या एक छोटा सा न्यूज जो किसी एक को बहुत ज्यादा टर्मोइल में डाल सकता है, इमोशनली अनरेस्ट ला सकता है, किसी दूसरे के लिए फिर भी वो बर्दाश्त करने लायक, सहने लायक चीज हो सकती है। तो हमारे केसेस में क्या है कि अगर हम ये समझें कि इंसान जो है एक बायोलॉजिकल क्रिएचर है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बायोलॉजिकल एंटिटी के रूप में इंसान में क्या है और क्या उसकी कैपेबिलिटी है। ब्रेन कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है, और फिर आप उस पर बिहेवियरल पैरामीटर्स को आप सुपर इम्पोज कीजिए ना, जैसे एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाते हैं सुपर इम्पोजिशन में, है ना। बस आपको वही करना है कि एक बिहेवियरल एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति का हम बिहेवियरल एस्पेक्ट हम मैप कर रहे हैं वो दरअसल एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बायो बिहेवियरल अप्रोच लेना मेरी समझ से बहुत ही रोबस्ट अप्रोच है। और अगर हम इसमें तीनों चीज का मिक्स कर दें, हम बिहेवियरल एस्पेक्ट रखें, हम इसमें जो इंजीनियर्स का अप्रोच है उसको भी डालें, और इसमें हम जो न्यूरल एस्पेक्ट है, जो हार्ट को जैसे ब्रेन कैसे काम करता है उस चीज को भी डालें, और इसके बाद जो हम बिहेवियरल टूल निकालेंगे वो बहुत रोबस्ट होगा। मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, आपसे एक चीज शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हल्स्टेड राइटिंग टेस्ट बैटरी सुना होगा, है ना, और आप सब लोग वाकिफ हैं ब्रॉडमैन एरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ हल्स्टेड राइटन ने क्या किया, हम लोग जैसे टेस्ट बनाते हैं ना, आइटम जनरेट किया, फिर हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं ना, फैक्टर एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, या फैक्टर लोड देखते हैं, क्रॉस लोड देखते हैं, और इसके आधार पर आप फैक्टर्स डिफाइन करते हैं और आइटम्स ऐड आप रिटेन करते हैं या ड्रॉप करते हैं। यही हम लोग करते हैं फैक्टर एनालिसिस में। हल्स्टेड राइटन ने क्या किया, उन लोगों ने जो भी आइटम्स थे उनके टेस्ट के, उन सारे आइटम्स को उन्होंने उन लोगों पर कंडक्ट किया जिनमें वो एरियाज डैमेज्ड थे,
और इस तरह से उन्होंने डबल इंडोर्स किया, इस तरह से उन लोगों ने डबल इंडोर्स किया कि ब्रॉडबैंड एरिया जो है, ब्रॉडबैंड एरिया और जो एक्चुअल जो बिहेवियरल मेजर है, तो बायोलॉजिकल मेजर और बिहेवियरल मेजर कितना हद तक ओवरलैप करता है। और इसीलिए, हालांकि मैंने देखा नहीं है बहुत सारे थीसिस में या पेपर्स में इंडिया में लोगों को हॉल स्टिट रैट एंड बैटरी इस्तेमाल करते हुए, बट वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट टूल्स है, क्योंकि उन्होंने ठीक यही अप्रोच अपनाया जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, बहुत पहले। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक लेबलिंग है, रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा टास्क है। और हम जानते हैं कि ब्रेन एक सर्टेन वे में काम करता है, हम जानते हैं कि बिहेवियर एक सर्टेन वे में काम करता है, और फिर इस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज क्वांटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि इस वर्कशॉप में जो पूरा फोकस है वो मेथड्स के ऊपर है। हमारे बिहेवियरल स्टडीज में हम लोग दो चीजों को बहुत फोकस करते हैं। अगर हम प्योरली फेशियल एक्सप्रेशन को अगर लेते हैं, तो एक है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना था, और दूसरा कि अगर आप बहुत और एक पैरामीटर उसमें जोड़ना चाहें, एक वेरिएबल जोड़ना चाहें, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या था। हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है, क्योंकि हम जो टूल्स अप्लाई करते हैं वो हमको और कुछ अलाउ ही नहीं करता है। लेकिन उसके इतर अगर आप देखिए इंजीनियरिंग साइंसेस में, बेसिकली इलेक्ट्रिकल में जो लोग सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ब्रांच पे जो लोग हैं, तो अभी के जब आप देखेंगे उनके जो अप्रोचेस है, उसमें आप पाएंगे कि वो मार्कोव मॉडल यूज करते हैं, बेशियन नेटवर्क भी यूज करते हैं। बेशियन स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी में भी इंडिया में कुछ कुछ पेपर आपको मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको बेशियन स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले। जो सपोर्ट वेक्टर है इसको यूज करने वाले, नेटवर्क एनालिसिस होता है ना, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है अगर आप देखिए कि जो अप्रोच हम अपना रहे हैं और जो अप्रोच आज के समय में जो लोग ऑटोमेटेड नेटवर्क पे काम कर रहे हैं जो वो अपना रहे हैं। सो जो मेरी कोशिश है वो ये कि मैं आपको एक बायो बिहेवियरल ट्राजेक्टरी समझाऊं, इमोशन का केस स्टडी लेकर के, और उसमें भी इमोशन में मैं केवल फेशियल एक्सप्रेशंस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं बहुत पुरानी अपनी एक स्टडी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको बताया कि मैं कन्वीनियंस के लिए मैं एक ही चीज को ले रहा हूँ, और वो है फेशियल एक्सप्रेशन। 2006 में एक पेपर मैंने पब्लिश किया, हाफ गेटवे टू द होल। उसको बताने की वजह ये है कि इसमें जो मैंने टूल इस्तेमाल किया था वो ये था, है ना। आप जो लेफ्ट पैनल पर लेडी का फेस देख रही है, ये ओरिजिनल फेस है, और इसमें फिर जो ऊपर और नीचे के चेंजेस हैं, जैसे आप यहाँ देखिए जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लेफ्ट फेस है और राइट फेस इरेज कर दिया गया है। यहाँ पर ओरिजिनल राइट फेस है, ओरिजिनल लेफ्ट फेस को इरेज कर दिया गया है। और जो लेफ्ट फेस है, जो ये वाला फेस है, लेफ्ट और लेफ्ट को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये फेस, जो ओरिजिनल फेस ये था, वो अब ऐसा लगेगा। देखते हैं यहाँ पर राइट फेस है, लेफ्ट फेस को इरेज कर दिया गया है, इस राइट का फिर मिरर इमेज है, और इस दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ये दिखलाने की कोशिश थी कि लेफ्ट फेस और राइट फेस एक जैसा नहीं होता है। ये बहुत प्रूवन फैक्ट है, बहुत पुरानी बात हो गई है। ये स्टडी हालांकि 2006 में हमने पब्लिश किया, इसको किया था मैंने 2003 में, और कुछ नहीं था, एक फोटोग्राफ था, और उसी फोटोग्राफ को उस समय के अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैंने स्कैन करके और इरेज करके फोटोशॉप में, जो कि बहुत मेहनत का काम था उस समय हमारे लिए, और ये किया। और फिर इसके बाद बिहेवियरल डेटा हमने कलेक्ट किया, और ये समझाने की कोशिश थी कि क्या हम आधा चेहरा देखकर पूरा चेहरा समझ सकते हैं, है ना? इसीलिए इस पेपर का टाइटल अगर आप देखिए, इस पेपर का टाइटल है या हाफ गेटवे टू द होल। तो हम आधे रास्ते से ही हम पूरे फेस को हम पढ़ ले रहे हैं।
ये बहुत पुरानी स्टडी हो गई। अब हम इस फेज से शुरू करके अभी 2021 का जो हम लोगों की स्टडी है, हम वहां तक का ट्रेजेक्ट्री आपके साथ कवर करना चाहते हैं इस जो समय अंतराल हमें मिला है उसमें। अगर आप अभी का मतलब 2006 की ये स्टडी थी, उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या वेरिएशंस आए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक चीज मिलेगी। वर्ल्ड वाइड 4 ऐसे डेटाबेस हैं, है ना। मैं आपको शुरू में ही कहा कि ये स्टैटिक और डायनेमिक स्टिमुलस के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वैरिंग इंटेंसिटी है, मतलब एक ऐसा डेटाबेस हो जिसमें कई सारे इमेजेस हो और हर इमेज का एक इंक्रीज्ड इंटेंसिटी या डिक्रीज्ड इंटेंसिटी का भी एक्सप्रेशन हो। मतलब हम हैप्पीनेस ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं, तो जो हम चेहरा ले रहे हैं उससे कम खुश और उससे ज्यादा खुश चेहरा भी हमारे पास होना चाहिए। ये वैरिंग इंटेंसिटी हो गया। केवल 4 डेटाबेसेस थे। एक डेटाबेस 2005 में बना, एक 2007 में, एक 2011 में और एक 2012। और हम लोग क्योंकि ऑटिज्म पर स्टडी कर रहे थे, तो हम लोगों ने फिर ये प्लान किया कि हम लोग एक दूसरा डेटाबेस भी बनाएंगे। लेकिन जो मैं आपसे शेयर अभी करना चाह रहा हूँ, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि वैरिंग इंटेंसिटी का डेटा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक भी नहीं था। तो 2006 में मैंने फिर एक अपने जिम्मे एक काम लिया और उसमें मैंने क्या किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वेरिएबल इंटेंसिटी, इसको हमने नाम दिया हुआ है द इंडियन डेटा सेट ऑफ बेसिक इमोशंस, IDBE बोलते हैं इसे। 2007 की ये मेरी स्टडी थी। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो आपसे शेयर करना कि अब मेथोडोलॉजिकली टूल्स टेक्निक्स में क्या फर्क है। हमने 62 लोगों पर ये स्टडी किया, प्योर बिहेवियरल स्टडी था ये। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल था और लेबलिंग टास्क था। लेबलिंग मतलब कि आपको चेहरा दिखलाया जाएगा और आपको बताना है कि ये कौन सा इमोशन है। और जब आप पहचान लिए कि ये हैप्पीनेस है, तो आप बताइए कि ये कितना हैप्पी है, 1 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है। ये हमारा रटा रटाया टेक्निक है साइकोलॉजिकल साइंसेस। मैंने जो एक चीज इस स्टडी में बाद में की, 2007 में नहीं की है, बाद में की, मैंने आपको बताया कि हम लोग साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि हम लोग एक्यूरेसी निकालते हैं, ना। अगर आपको परसेप्शन वाले मॉड्यूल का याद हो कि हम लोग सिग्नल डिटेक्शन थियरी पढ़ते हैं, तो हिट रेट कैलकुलेट करते हैं। हिट रेट हमारा एक्यूरेसी है। लेकिन अगर आप मतलब बहुत ही इंटेंसली आप देखें कि क्या अल्टरनेट वे भी है इसको करने का, बहुत कम लोग स्टडीज में है ये रिपोर्टेड, लेकिन आपको मिलेगा कि 5 और भी इंडेक्सेस हैं, है ना, एक्यूरेसी के अलावा। हमने केवल क्या किया, राइट रॉन्ग निकाला कि मान लीजिए हमने हैप्पी फेस दिखलाया और किसी ने कहा कि नहीं साहब ये न्यूट्रल है, तो वो रॉन्ग हो गया रिस्पॉन्स। या हम दूसरा ये कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम लिया इसको बताने में। हमारे पास ऑप्शन है 5 अलग और चीजों को कंप्यूट करने का। वो है कि हम आइडियोसिंक्रेटिक हिट रेट निकाल सकते हैं, अनबायस हिट रेट निकाल सकते हैं, है ना, डिफरेंशियल एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, करेक्टेड हिट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और फाइनली हम इंडेक्स ऑफ एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो डेटाबेस था, हम लोगों ने बस टेंटेटिवली, मैंने उस समय में, बहुत पुरानी स्टडी हो गई, तो 62 लोगों की स्टडी थी, लेकिन प्योर बिहेवियरल स्टडी था ये। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक्यूरेसी और जो हिट रेट है और जो रिस्पांस टाइम है, उसके बियॉन्ड के ये कैलकुलेशंस है। और फिर जब आप मैं थोड़ी देर बाद फिर इस पर आऊंगा और फिर इसको मैं कनेक्ट करूंगा कि इंजीनियरिंग साइंसेज में लोग इसको कैसे करते हैं। अब हिट रेट क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि परसेंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट करेक्ट रिस्पॉन्स है। तो मान लीजिए हमने 62 लोगों को दिखलाया और हैप्पीनेस को मान लीजिए 90% लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया, तो हमारा हिट रेट जो है वो 90 हो गया। लेकिन ये हिट रेट जो है ये बायस हिट रेट है। बायस्ड हिट रेट क्यों है? हम लोग बिहेवियरल स्टडी, आप सबको ये पता है कि हम स्टिमुलस को एक ही बार दिखलाते हैं ना, और हमारा आर्गुमेंट ये होता है कि अगर हम स्टिमुलस को बार बार रिपीट करेंगे तो फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। बहुत बाद में, अंत के करीब में, मैं आपको दिखलाऊंगा कि दूसरी तरह की स्टडीज में किस तरह के काम होते हैं। और फिर आप वहां देखेंगे
कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलाई का अपना इंपॉर्टेंस है। तो हिट रेट कैलकुलेट करने को आप चाहें तो अब आप अनबायस्ड हिट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं देखिए ये इसका कैलकुलेशन, जैसे मैंने 6 इमोशंस है, हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट। तो आप इसको रो बाय कॉलम बना दीजिए, और रो बाय कॉलम करके आप देखिए यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T1A, T2A, T3A, लाइकवाइज फाइनली आप TT कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग साइंसेज में खूब इस्तेमाल होता है। बिहेवियरल स्टडीज में हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं करते, हम लोग जो है वो सस्ता वाला टेक्निक अपना लिए है। हम लोग केवल हिट रेट निकालते हैं, और हिट रेट के बेसिस पर हम रिपोर्ट कर देते हैं कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी, ये करेक्टली आइडेंटिफाई होता है, वो नहीं होता है। जबकि आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 तरह से इसको आप कैलकुलेट करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने, ये जो भी आपने देखा, एक ही इमोशन के 6 अलग अलग इंटेंसिटी, लोवेस्ट से लेकर के हाईएस्ट तक, तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया अपना। तो ये एक ऑप्शन है, मुझे लगता है कि इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ताकि आप दुनिया के बाकी साइंसेस के पैरेलल चल सके, और इंजीनियरिंग साइंसेस भी समझे कि नहीं नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट की भाषा भी वही है जो हम अडॉप्ट करते हैं, और आपकी फाइंडिंग्स भी वही बताती है जो हम बताते हैं। अगर मैं आपसे ये बता दूं, आई डोंट नो इसमें कोई इंजीनियर है या नहीं है इस ग्रुप में अभी, लेकिन अगर आप हैं तो आपको सॉरी बोलते हुए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग साइंसेज वालों से, तो आपको पता चलेगा कि उन सारी चीजों का जिसका कि वो दावा करते हैं करने का, उसमें से बहुत कम चीजों की उनको एक्चुअल समझ होती है, जिसका कि ह्यूमन बीइंग से रिलेशन। तो इसीलिए हम साइकोलॉजिस्ट का या हम सोशल साइंटिस्ट का ये भी एक दायित्व बनता है कि हम उनको ये चीज समझाएं कि देखिए चीजें वैसे नहीं होती है मशीन में जो आप सोच रहे हैं, चीजें हकीकत में ऐसे होती है। अब इसकी कोडिंग कैसे होगी मशीन में, वो हम दोनों मिलकर तय करेंगे। इस पर थोड़ी देर बाद फिर से हम पहुंचेंगे। हमने क्या किया, जो आपको दिखलाया अभी कि एक ही इमोशन के 6 अलग अलग इंटेंसिटी था, इसमें मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर मान लीजिए कि हम जो ट्रेडिशनली मनोविज्ञान में करते हैं कि आप इमोशन पहचानिए, तो एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाता है ना। अब ये वाला जो जोन है आप देखिए, जो ब्लू है ये केवल इमोशन रिकॉग्निशन है, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट के लिए। ब्लू बार जो है वो दिखलाता है कि अगर आपको केवल हैप्पीनेस आइडेंटिफाई करना है, सॉरी इमोशन आइडेंटिफाई करना है। ये लाल और हरा बार जो है ये इंटरेस्टिंग है। लाल बार है जब आपको इमोशन और उसकी इंटेंसिटी दोनों पहचानना है, तो आप देखिए कि हमारा एक्यूरेसी लेवल 50% से ज्यादा गिर जाता है नीचे। और सॉरी, ये केवल लाल बार केवल इंटेंसिटी के लिए है, और जो हरा बार है वो इमोशन और इंटेंसिटी दोनों का करेक्ट रिकॉग्निशन के लिए है। और फिर आप देखिए कि कहानी बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। इसका हकीकत की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए सर बड़े नाराज हैं आज, है ना, या पापा बड़े गुस्सा है, या मम्मी बहुत नाराज है आज। आपको कैसे पता चलता है कि वो नाराज है? वो इमोशन का आइडेंटिफिकेशन। जब आप बोलते हैं कि बहुत नाराज है, ये क्वालिटेटिव एक आपने जोड़ दिया उसमें फैक्टर, तो बहुत को कैसे क्वांटिफाई करते हैं आप, है ना। तो आपका जो रिकॉग्निशन है वो इमोशन प्लस इंटेंसिटी का रिकॉग्निशन, और ये स्टडी बताती है कि जहां कहीं भी केवल इमोशन का रिकॉग्निशन हो वो इजियर है, जहां केवल इंटेंसिटी है वो भी कुछ कुछ केसेस में इजियर है, पर इमोशन प्लस इंटेंसिटी बहुत आसान नहीं है आदमी के लिए। आप इसी को दूसरे तरह से समझिए। ये प्लॉट देखिए, अब आप ये 6 प्लॉट आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट है जहां मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूं, लेफ्ट टॉप, ये लोवेस्ट इंटेंसिटी है, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, और जो 6th आप यहाँ देख रहे हैं राइट कॉर्नर बॉटम, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी के लिए है। आप देखिए जैसे जैसे इंटेंसिटी बदल रही है ना, हमारे रिस्पॉन्सेज भी बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि अति चीरित जब आप सुख से होते हैं, अति पीड़ित जब आप दुख से होते हैं, रिस्पॉन्स एक ही जैसा नहीं रहता है। ये कितना अति है, ये चीजें वैरी करती हैं। तो इसीलिए हम जब
क्योंकि मैं केस स्टडी के रूप में केवल फेशियल एक्सप्रेशन एज ए स्टिमुलाई ले रहा हूँ, तो फेशियल एक्सप्रेशन एज ए स्टिमुलाई जब हम लेते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम इसमें जो इंटेंसिटी है और जो मिक्स ऑफ एक्सप्रेशन इन एंड इंटेंसिटी है, हम लोग इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैंने काफी समय इस पर बिताया, तो चलिए अब हम दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट एक यह है समझना कि जब हम चेहरे को देखते हैं, मान लीजिए कि हमने आपके चेहरे को देखा, हमने क्या देखा, अब हम कैसे पता करें कि हमने देखा क्या? हम तो कहते हैं कि भाई ये स्टिमुलस है, और हम बिहेवियरल साइंसेज में ट्रेडिशनली हम ये अस्यूम करते हैं कि आपने पूरा चेहरा देखा। हकीकत क्या है? तो मैं एक टेक्निक पर आता हूँ। इस टेक्निक को आई ट्रैकिंग टेक्निक बोलते हैं। आई ट्रैकिंग कुछ नहीं है, बेसिकली इंफ्रारेड कैमरा है जो आपके आईबॉल्स को ट्रैक करता रहता है, जो आंख की पुतली हमारी है उसको ट्रैक करता रहता है। अब आप देखिए, ये जो 6 इमोशन के जो आपने देखे हैं यहाँ पर ना, ये 6 एग्जैक्टली यही है, कलर्ड इमेजेस हैं, यहाँ पर फर्क इतना ही है। ऊपर में ये स्टिमुलाई है, लोवेस्ट इंटेंसिटी, और ये हाईएस्ट इंटेंसिटी। ये जो आप बबल देख रहे हैं यहाँ पर, ये बबल दरअसल आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि ये स्कैन पार्ट है। तो ये स्कैन पाथ क्या है? स्कैन पाथ दरअसल होता क्या है कि जब हम देखते हैं, हम पूरे चेहरे को कभी नहीं देखते हैं, हकीकत ये है। तो हम देखते क्या है? कभी हम आपकी बाईं आंख देख रहे हैं, कभी हम आपकी दाहिनी आंख देख रहे हैं, कभी नाक देख रहे हैं, कभी होठ देख रहे हैं। मिली सेकंड में अगर आप उस पूरे टुकड़े को, मान लीजिए हमने आपके चेहरे को 2 सेकंड के लिए देखा, उस 2 सेकंड को अगर आप मिली सेकंड में बदल दें, तो आप पाएंगे कि हर मिली सेकंड फ्रेम में मैं किसी एक चीज को ही देख रहा हूँ, है ना? और स्कैन पाथ जो है वो दिखलाता है कि हर इस मिली सेकंड में आप क्या देख रहे थे, उस मिली सेकंड में आप क्या देख रहे थे। और जो सबसे नीचे बॉटम पर आप देख रहे हैं वो है अटेंशन मैप। ये सेम डेटा है, उसने जो इंफ्रारेड कैमरा है उसने फिर अब बैक एंड पे कोडेड कंप्यूटेशन किया उसने, और उस एल्गोरिथम के आधार पर उसने निकाला कि जो स्टिमुलस था उसमें देखा क्या आपने। अब आप देखिए पूरा डार्क हो गया चेहरा, जो हिस्सा उस व्यक्ति ने देखा, इस एक पार्टिसिपेंट का केवल है ये। आप देखिए कि उसने क्या देखा, आंख देखा, नाक देखा और होठ देखा, गाल, ललाट, बाल, है ना, ये टुड्डी, कुछ देखा ही नहीं है उसने। तो ये एक जबरदस्त टेक्निक है ये समझने का हम लोगों के लिए, एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि जो हम ये अस्यूम कर लिए थे ना कि हम पूरा स्टिमुलस हमारा पार्टिसिपेंट देखता है, ये सच है ही नहीं। तो हम अर्ध सत्य पर ही अपने रिसर्च को किए जा रहे थे। अब हम लोगों ने ये सोचा मैंने कि बहुत हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, हम श्योर है अनुभूति जी, धनंजय सर, सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपसे जुड़े हुए, आप सब शायद इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि करियर में क्या होता है ना कि एक समय के बाद आपको सैचुरेशन फील होता है, आपको लगता है यार हम वही चीज बार बार किए जा रहे हैं, कुछ नयापन नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हो गया, एक टेक्निक सीखे, अब इसी कोरिलेशन रिग्रेशन के सहारे हम रिटायर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ऊब गए ना एक ही चीज करते करते। तो मैंने सोचा कि अच्छा मान लीजिए कि चेहरे में एक नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने ये पता किया कि अच्छा खास हिस्सा ही दिखते हैं। तो इस खास हिस्से में हमने तो केवल ये पता किया ना कि भाई आपने चेहरा देखा और आप बताइए कि ये कौन सा इमोशन था और कितना इंटेंस था। अगर हम ये चाहें कि एक सिस्टम इसको रीड करे, जो कैमरा होते हैं आजकल के, वो अगर रीड करें, तो इस इमेज के बेसिस पर जो ये आप देख रहे हैं अटेंशन मैप, इस अटेंशन मैप के बेसिस पर हमने 3 एरिया आइडेंटिफाई किया। तीनों को हमने कहा कि ये हमारा ROI है। ROI मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट। हमारी जो पूरा इंटरेस्ट है वो आंख को देखने में है, नाक को देखने में और होठ को देखने में है। और अब इसको अगर हम मैथमेटिकली कंप्यूट करना चाहें, जहां अब इंसान न करे, जहां एक कंप्यूटर कोड इसको करे, तो क्या उसका आउटपुट भी वही आएगा जो इंसान का आया है ना? तो ये आप जो यहाँ देख रहे हैं DJ, WI, बेसिकली ये इसी को आप दो जो रेड पॉइंट्स है, जो येलो येलो लाइंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं,
दो रेड डॉट को कनेक्ट करते हुए, उन्हीं को अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। हम लोगों ने अब क्या किया, अब हम प्योरली उस एनालिसिस पर जा रहे हैं जो ट्रेडिशनली साइकोलॉजी में लोग करते ही नहीं है ना। इनफैक्ट मैं आज क्लेम कर रहा हूँ ये चीज कि एक जापानीज साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ साल पहले ये किया था, उसके बाद अभी इसी साल शुरुआत में 2021 की शुरुआत में हम लोगों ने एक पेपर ऐसा रिपोर्ट किया। बीच में कोई पेपर ही नहीं मिलेगा आपको जो इस तरह की एनालिसिस किया हो। इसमें हम लोगों ने एक अलग तरह से एनालिसिस किया। ये एनालिसिस क्या थी, आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी फैक्टर एनालिसिस पढ़ा है ना, उसमें रोटेशन करते हैं, है ना। तो रोटेशन में सर ने आपको पढ़ाया होगा कि आप ग्राफ पेपर जैसे ले लीजिए, है ना, तो उसमें वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर हम ग्राफ पेपर का एंगल चेंज कर दें ना, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से अगर हम घुमाने लगे, तो हम जिस भी एंगल पर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को हम मूव करेंगे, है ना, तो हम रोटेट करके हर फैक्टर को रोटेट करके चेक करते हैं ना। इसीलिए वेरिमेक्स रोटेशन या ऑब्लिक रोटेशन, रोटेशन के अलग अलग टेक्निक्स है जो इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। एग्जैक्टली ये वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि चेहरे पर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दिया, ठीक है, 3 एरिया में, आंख, नाक और होठ के एरिया में। और अब हम कह रहे हैं कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जिन लोगों ने 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ा हो, है ना, एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है। जैसे मान लीजिए कि आप सीधा जाएं 2 कदम, फिर दाहिने 2 कदम और फिर तिरछा 2 कदम चलें, तो फिर आप उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो मैथ्स में लोग कहते हैं ना कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, बी से सी गए, सी से ए आ गए। यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहता है कि बेसिकली ए सी ही आपका एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है, ए बी और बी सी जो है वो नहीं है, वो तो आपने रूट अडॉप्ट किया था। तो हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया कि जो चेहरा है ये तो फोटो में पिक्सल होता है केवल, तो पिक्सल में अगर हम रूट मीन स्क्वायर निकाल दें और उसमें हम देखें कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पिक्सल्स में क्या डिफरेंस आया, तो जब इंसान ने उसको बताया कि साहब ये खुश है और ये इंटेंसिटी उसकी इतनी है, और हमने फिर अनबायस्ड हिट रेट और इडियोसिंक्रेटिक हिट रेट और सारी तरह के कैलकुलेशन किए, फाइनली हमने इंडेक्स ऑफ एक्यूरेसी कैलकुलेट किया। तो क्या मशीन भी वैसा कैलकुलेट कर सकता है? ये कहानी हम यहीं पर अभी अधूरा छोड़ रहे हैं, एक दूसरे डेटाबेस पर आते हैं। आपको हम एक चीज और वाकिफ कराते चलेंगे, अब हमारे साथ दूसरे दूसरे रिसर्चर्स भी जुड़ते चलेंगे। अभी जो तक जो स्टडी थी वो अकेले की स्टडी थी। यहाँ पर उज्ज्वल शर्मा हमारे साथ पीएचडी किया इन्होंने। उज्ज्वल शर्मा और मैंने मिलकर के 2019 में एक डेटाबेस बनाया। इसका हम लोगों ने नाम रखा है IAPD, इंडियन अफेक्टिव पिक्चर डेटाबेस। इसमें फर्क क्या है, जो पिछला आपने देखा था सब में फ्रंट फेस है। साइकोलॉजी में ज्यादातर जो है आपको फ्रंट फेस वाले डेटाबेस मिलेंगे। इसमें आप देखिए बॉटम पे आपको दिखेगा 5 डिफरेंट एंगल है, 5 डिफरेंट एंगल है। जो बीच वाला है जो फ्रंट फेस है उसको हम 0 एंगल बोल रहे हैं। और इसके बाद -45, बाईं तरफ जाइए तो -45, -90, और दाहिनी तरफ जाइए तो +45, +90। और फिर से हम आपको बताते चलें कि फिर से जैसे उसमें हमने कहा कि बस 4 पे ऐसे डेटाबेस हैं जिसमें वेरिएबल इंटेंसिटी है, उसी तरह से मल्टीपल फेशियल एंगल से भी बहुत लिमिटेड डेटाबेस है। मेरे ख्याल से शायद कहीं किसी स्लाइड में हमने लिखा हो, ये 5वां डेटाबेस है जिसमें कि मल्टीपल एंगल्स यूज किए गए हैं, और दोनों ही डेटाबेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकलौते डेटाबेस हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, कलर्ड फोटोग्राफ लिया, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रखा। पिछले वाले में केवल 62 थे, जब हमने आई ट्रैकिंग पर उसको टेस्ट किया था तो केवल 10 थे। अब की बार क्योंकि दोनों के रिसर्च प्रॉब्लम्स अलग थे, इस बार हम लोगों ने 350 लोगों को लिया और एग्जैक्टली वही चीज इस्तेमाल किया। अब देखिए ये 5 डिफरेंट फेशियल एंगल, और इसमें जैसा कि उसमें था बेसिक इमोशन का जो डेटा सेट था ना, 6 अलग अलग इंटेंसिटी के इमेजेस, एग्जैक्टली उसी तरह से इसमें भी हम लोगों ने अनबायस्ड हिट रेट और सारी चीजें कैलकुलेट की। अब मेजर डिफरेंस क्या है मेथोडोलॉजिकली, है ना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला, कि
जो पहली स्टडी आपसे हमने शेयर की थी 2006 वाली स्टडी, जिसमें मिटा मिटा करके लेफ्ट राइट फेस के एंगल्स बनाए गए थे, उसमें भी मल्टीवैरिएट था, इसमें भी मल्टीवैरिएट है। 7 इमोशन इंटू 5 एंगल इंटू 4 एक्सप्रेशन, आपको पता है ये चीजें, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो हमने 6 अलग अलग इंटेंसिटी वाली इमेज ली थी वो केवल 5 पॉइंट स्केल पे था, और ये वाला जो इंडियन अफेक्टिव पिक्चर डेटाबेस, इसमें हमने 9 पॉइंट स्केल रखा है। निकट स्केल है दोनों, लेकिन 9 पॉइंट स्केल है, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग से 5 पॉइंट स्केल पे रेटिंग कराते हैं और 9 पॉइंट स्केल पे रेटिंग कराते हैं, तो डेफिनेट है कि रेटिंग में डिफरेंस आएगा। जो आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे उसमें डिफरेंस नजर आएगा। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से जाएं, जहां की हम एवरेज, मीन और एसडी कैलकुलेट करते हैं, है ना, और फिर एफ या टी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अगर हम अनबायस्ड हिट रेट, बायस्ड हिट रेट, इडियोसिंक्रेटिक हिट रेट, है ना, डिफरेंशियल एक्यूरेसी, इन पर जाते हैं, तब कहानी बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और तब हम 5 पॉइंट स्केल इस्तेमाल किए या 9 पॉइंट स्केल इस्तेमाल किए, ये डिफरेंस वहां पर खत्म हो जाएगा। केवल आप मीन और एसडी पर जाएंगे और तो आपका टी और एफ में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मीन में जो है बेसिकली वो बायस्ड हिट रेट है, वो अनबायस्ड हिट रेट नहीं है ना। तो ये मेथोडोलॉजिकली हम लोगों को ये समझने की जरूरत है आज के समय में। ये प्योरली बिहेवियरल एस्पेक्ट है। इस बिहेवियरल एस्पेक्ट में मैं आपको थोड़ी देर के लिए अब साइकोलॉजी और सोशल साइंस के कंफर्ट जोन से बाहर निकालता हूँ, है ना। अब हम चलेंगे, अगर हम चेहरे को केवल एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के रूप में देखें, ये एक ज्योमेट्रिक संरचना है बस। अब आप इसी को पिक्सेलेट कर दिया, वही इमेज है, सेम इमेज है, उसको हमने पिक्सेलेट कर दिया। अब देखिए हमारे साथ जो कोलैबोरेटर है प्रोफेसर प्रभात मुंशी, ये बेसिकली न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ हमारे कलीग हैं, अभी जस्ट रिटायर किया उन्होंने 30 जून को। मुंशी साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पुराना है, हम लोग मतलब वीकली मीटिंग्स हम लोगों की होती रही है, अब तो कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए। हर तरह के डिस्कशंस, हर तरह के डिस्कशंस, और आप बिलीव कीजिए कि लगभग 3 साल के कंसिस्टेंट डिस्कशन और एम्पेरिकल वर्क के बाद फिर हम लोगों ने ये पेपर अभी 2021 में ये पब्लिश हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी है, अगर सोशल साइंसेस के ही लोग केवल इस प्रोग्राम में अगर आए ऑडियंस में, ये साइकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है, ये कंप्यूटर विजन इमेजिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन, यूरोप का एक प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम लोगों ने इस बार ये पेपर पब्लिश हुआ वहाँ के कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली वही चीज, आई, लिप, नोज, हमें पता था यही स्ट्रक्चर्स है। अब हम उसको पूरी तरह से, हम यही दोनों डेटाबेस जो आपको हमने दिखलाया, 2007 का डेटाबेस और 2017 का डेटाबेस, ये 2017 दरअसल 2019 होना चाहिए, पब्लिश 2019 में हुआ। ये 2 डेटा सेट हमने लिया, और इस डेटा सेट को हमने क्या किया, केवल ज्योमेट्रिक एनालिसिस किया। क्या किया वो एग्जैक्टली आपको दिखलाएंगे। उसके पहले हम आपको बताएं कि जो थियोरेटिकल फाउंडेशन था उसका, वो ये नहीं कि आदमी क्या अपना रिस्पॉन्स रेट दिखलाता है, उसका मीन और एसडी क्या आता है, ये हमारा इश्यू नहीं था। हमने कहा कि हम फ्रैक्टल ज्योमेट्री कैलकुलेट करें, फ्रैक्टल डायमेंशन। फ्रैक्टल डायमेंशन क्या है, आप जैसे नीम के पौधे को देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे नीम का पेड़ है ना, उसमें एक टहनी होगी, उसमें छोटी छोटी टहनियां निकली होंगी, और हर टहनी में दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ पत्तियां निकलती हैं। और हर पत्ती को आप देखें तो बीच में एक वेन होता है, और दोनों तरफ उसके छोटे 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 वेन्स निकले होते हैं। इसको सेल्फ सिमेट्री बोलते हैं, है ना। सेल्फ सिमेट्री का मतलब हुआ, सेल्फ सिमिलैरिटी, कि बड़े से बड़े स्तर पर और छोटे से छोटे स्तर पर हकीकत में इसके, इस ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो सिमेट्रिकल है। तो हमारा चेहरा पासपोर्ट साइज बना दीजिए, फुल साइज, पोस्टर साइज, बड़ी सी मूर्ति बना दीजिए, वही रहेगा। तो फ्रैक्टल ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, और अगर हम सेल्फ सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल वहां होता है, तो हम क्या, हमारा चेहरा भी वैसा ही है। और अगर ऐसा चेहरा है तो क्या, जो जब हम उसको पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं इमेज में, फोटो एनालिसिस या वीडियो एनालिसिस के लिए, तो क्या सिस्टम को उसी तरह से रीड करना चाहिए जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि एक जापानीज ग्रुप है ताकेहारा, इन्होंने 2002 में ये स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने भी फ्रैक्टल डायमेंशन इस्तेमाल किया था ह्यूमन फेस के लिए। ताकेहारा के बाद से 2002 की उस स्टडी के बाद उन्होंने 2-3 और स्टडी पब्लिश किए हैं। उसके बाद ताकेहारा के इस स्टडी के बाद से सीधा 2021 इस साल हम लोगों ने पेपर पब्लिश किया। साइकोलॉजी में लोगों ने फ्रैक्टल डायमेंशन को इस्तेमाल नहीं किया। एक रीजन हो सकता है क्योंकि आप फ्रैक्टल डायमेंशन तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप इससे फेमिलियर हो, प्लस आप ये रिस्क लेने को तैयार हो कि जिस मेथड को हमने सीखा है अपने बीए, एमए और पीएचडी के दिनों में और करियर के शुरुआत के दिनों में, अब हम उसको डंप करके नई टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे। रिस्क है उसमें, लेकिन अगर लेने को तैयार है तो फिर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने वेरिएबल इंटेंसिटी लिया पुराने डेटाबेस का और इस नए वाले डेटाबेस का हमने वेरिएबल एंगल लिया, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। मैं फॉर्मूला पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ देखिए जो नीचे जो डी लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली अगर आप याद करें तो सिग्नल डिटेक्शन की जो थियरी है ना, वहाँ जो डी प्राइम जैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, इंटेंसिटी का जो सिग्नल का स्ट्रेंथ का वेरिएशन कब कैलकुलेट करते हैं सिग्नल डिटेक्शन में, बहुत हद तक मिलता जुलता है, बहुत हद तक मिलता जुलता है। वहां यहाँ पर केवल हम डिस्टेंस निकालते हैं, बस इतना ही का फर्क है। अब देखिए अब हम पिक्सल डिफरेंस निकाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर हमने कर दिया केवल उसका, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और फिर हम फर्दर उसका जो आरएमएस पिक्सल डिफरेंस है, अब हम पिक्सल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको अब हम रूट मीन स्क्वायर कर रहे हैं। ये अनबायस्ड हिट रेट वही है जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, पहले वाले डेटाबेस में फिर दूसरे वाले डेटाबेस में, ये कंसिस्टेंट है अभी भी। और ये जो अनबायस्ड हिट रेट का फॉर्मूला है वॉगनर की 1993 की एक स्टडी है, उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने पहली बार इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि साइकोलॉजिस्ट को ऐसा करना चाहिए। वॉगनर हिमसेल्फ वाज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन इसको लोगों ने बहुत तरजीह उस समय नहीं दिया साइकोलॉजिकल साइंसेस में। जब आप इंजीनियरिंग साइंसेस देखेंगे तो वो लोग अनबायस्ड हिट रेट को ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, हम लोगों वाले टेक्निक को वो मानते हैं कि इसमें फुल ऑफ डाउट्स हैं। और ये वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो हम शुरू में भी आपको दिखला रहे थे, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी में वॉगनर ने प्रपोज किया, हम लोगों ने अभी अपने 2019 वाले पेपर में इसको इस्तेमाल किया, 2021 वाले पेपर में इस्तेमाल किया, शायद आगे आने वाले पेपरों में भी इस्तेमाल करेंगे इसका। बस अगर आप चाहें, आपको ये टेक्निक अगर सुटेबल लगे तो केवल मीन एसडी कैलकुलेट करने की बजाय आप इस टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए लबोलबाब ये है कि ये हमारे 2 हो गए। अब देखिए अब एक तीसरी चीज पर आइए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि पॉल एकमैन ने एक्शन यूनिट्स की चर्चा की थी। अब एक्शन यूनिट्स के लिए आजकल तो उनके ओपन फेस सॉफ्टवेयर आता है ना, कोई भी फोटो आप डाल देंगे डायनेमिक अगर है तो वो अपने आप एयू कैलकुलेट करके बता देगा। हार्वर्ड वालों ने उसको ऑनलाइन भी कर दिया अभी अपना एक वर्जन। हम लोगों ने ये सोचा कि देखिए एयू तो मेरे पास भी वो सॉफ्टवेयर हम करेंगे तो वो एयू बता देगा, तो फिर हमारी स्टडी बेसिकली हम पॉल एकमैन को इंडोर्स कर रहे हैं कि एकमैन साहब आप महान थे, वाकई महान थे, उन्होंने बहुत बहुत ही मतलब सेलिब्रेटेड काम किया, लेकिन फिर हमारा क्या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है अपने डेटाबेस के थ्रू। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम भी एक्शन यूनिट से उसको मैच कराएंगे, लेकिन अपने फ्रैक्टल ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए। आप जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं, जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये वही 6 इमोशन है और ये 6 इंटेंसिटी है ना। ये जो आपने यहाँ देखा ऊपर वाला जो है ना वेरिएबल इंटेंसिटी, ये वही वेरिएबल इंटेंसिटी है। अब हम लोगों ने क्या किया, मैं बहुत जल्दी में करूंगा, 12:30 हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम लोगों ने हैप्पी के लिए एनालिसिस किया। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये देखिए ये लोवेस्ट इंटेंसिटी है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। अब हम इसमें ये पाए कि पूरे फेस में 3 जोन में जब बांट दिया आई ट्रैकिंग के अटेंशन मैप के आधार पर, आंख, नाक और होठ, तो पता चला कि साहब हैप्पीनेस ज्यादातर जो है ना, इसकी डिग्री जो है, इंटेंसिटी जो है, ये तो होठ से पहचानी जाती है। और ये याद रखिए कि ये बिहेवियरल डेटा नहीं है, ये सिस्टम, ये जो फैक्टरल ज्योमेट्री का डेटा है, जो रूट मीन स्क्वायर आपको भी हम बता रहे थे, ये उसका डेटा है।
तो रूट मीन स्क्वायर बताता है कि बाकी पिक्सल्स का डिफरेंस क्या था और होठ का डिफरेंस क्या था। सिग्निफिकेंस केवल होठ पे था। उदासी के केस में नाक और होठ दोनों का इंपॉर्टेंस था। लेकिन जब हम डरते हैं, भय, भय में हर जोन, फेस का जो आंख का रीजन है, नोज का रीजन है और लिप का रीजन है, तीनों रीजन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बिहेवियरल स्टडी भी ये बताता है कि फियर की प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पे होती है। और न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडी, जो प्योर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज है, वो भी बताते हैं कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो फियर को हमेशा प्रायोरिटी में प्रोसेस करता है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी वही बता रहा है कि तीनों रीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंगर के केस में देखिए, गुस्से में नाक और होठ, केवल इनका इंपॉर्टेंस है। और जब आपको आश्चर्य होता है, सरप्राइज, तो आईब्रोज और लिप्स, ऊपर और नीचे, बीच का चेहरा हम गौण कर देते हैं। और जब हम डिसगस्टेड हैं तो आईब्रो, आईलैश मतलब पलक, भौं, नाक और होठ चारों इस्तेमाल में आ गए। तो फियर और डिस्गस्ट इस मामले में काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो ये हम लोगों ने एक कंपैरिजन किया था। मैं ये सारी चीजें स्किप कर रहा हूं। अब मैं केवल आपको ये दिखला दूं कि जो पॉल एकमैन ने अपने फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम के थ्रू जो एयू निकाला, एक्शन यूनिट, और जो हम लोगों ने फ्रैक्टल ज्योमेट्री से निकाला, उसमें काफी समानता है। इसका मतलब हुआ कि आप बायोलॉजिकल टूल लें या आप बिहेवियरल टूल लें, अगर आपने रोबस्टली आपने डिजाइन किया है अपनी चीजों को, स्टडी को, और आपने अच्छे से कैलकुलेट किया है, तो जो आपका इनपुट है वो ऑटोमेटेड सिस्टम जब इंजीनियर्स बनाएंगे तो इंजीनियर्स को आपका सिस्टम बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही चीज को इंडिकेट कर रही हैं। एक और चीज जो मैं बस एक झटके में केवल बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये कि हम लोग जब ये एक्सप्रेशन लेते हैं ना, तो एक्सप्रेशन में हम मान के चलते हैं कि हर फेस इक्वली एक्सप्रेसिव है। अब हम लोगों ने फेशियल एक्सप्रेशन का जो फैक्टल ज्योमेट्री था, उसके आधार पर यह भी देखने की कोशिश की कि ये जो चार लोग इसमें एक्सप्रेसर्स थे, क्या चारों का चेहरा एक ही जैसा एक्सप्रेशन दिखलाता है? और इसका उत्तर है नहीं, है ना। अब देखिए, ये ग्राफ्स जो है, इस जो मेल जहां पर मैं ये कर्सर अभी घुमा रहा हूँ, ये इनका चेहरा इक्वली एक्सप्रेसिव नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी डेटाबेस बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक लार्जर और कंपैरेबल एक्सप्रेशंस हो, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब हम एक तीसरी चीज पर आ रहे हैं। तीसरी चीज, फिर से मैं आपको अपने टीम से अवगत कराता हूँ, ये कौन है ये लोग टीम में, हमारे टीम में। अब हम प्योर, पहले याद रखिए बिहेवियरल स्टडी किया, इसके बाद सिस्टम बेस्ड स्टडी था। अब हम उस सिस्टम बेस्ड स्टडी को लैब से निकालकर क्लिनिक ले जाने की तैयारी में है। हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं, प्रिया सिंह एंड के एस वेंकटेश। के एस वेंकटेश साहब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और प्रिया सिंह ने हम दोनों लोगों के साथ अपना थीसिस किया था। हमारे यहाँ एक थीसिस होती है, उसको MS बाय रिसर्च बोलते हैं, मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। वो थीसिस किया था प्रिया ने, आजकल गूगल में काम करती हैं बैंगलोर में। हम तीनों लोगों ने ये प्लान किया, इतनी तक की हमारी समझ थी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की स्टडी ऑलरेडी चल रही थी, तो हम लोगों ने इसको फिर वहां ले जाकर के कोशिश की। अब आप देखिए, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, चेहरा पिक्सलेट किया हुआ है ना, यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टरल ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं किया और ना ही बिहेवियरल टेक्निक। जो बिहेवियरल टेक्निक होता है ना कि आप पहचानिए कि ये कौन सा इमोशन है, वो इस्तेमाल किया, है ना। तो बच्चे के लिए वही था कि ये कौन सा इमोशन है और ये कितनी इंटेंसिटी है। लेकिन हमने टेक्निक जो अपने एंड पर इस्तेमाल किया वो ऑप्टिकल फ्लो का किया। ऑप्टिकल फ्लो मतलब कि जो चेहरे पर जैसे जैसे हर मिली सेकेंड जैसे जैसे भाव बदलेगा बच्चे का, है ना, तो हम उसके फ्लो को हम रीड करेंगे। अब हम टाइम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, उस टाइम स्टैम्प पर इसके भाव में क्या इसके चेहरे के भाव में क्या फर्क आ रहा है। और उसके लिए लुकास कैनाडे एल्गोरिथम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको सिग्नल प्रोसेसिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने इस्तेमाल किया। अब ये पिछले दोनों टेक्निक से एकदम ही अलग हो गया ये। लेकिन इस टेक्निक से आप याद कीजिए, पहले आपको हमने बताया कि अटेंशन मैप के लिए हमको आई ट्रैकर चाहिए था। अब हम बिना आई ट्रैकर के कर रहे हैं, नियर नॉर्मल कंप्यूटर पर ये बच्चा
अपनी आंख की पुतली घुमा रहा है। अब हम केवल इसकी आंख की पुतलियों को मान करके कि ये कहाँ बैठा है और इसका डिस्टेंस कितना है अपने कंप्यूटर से, उसके आधार पर हम ये एल्गोरिथम इस्तेमाल करके ये क्या देखा, कहाँ देखा और किस तरह से वेरिएशन आया। ये केवल ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसके लिए है कि पूरे चेहरे को आप इस तरह से वेक्टर पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर आप देखिए, आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, ये है जो इसको टिपिकल चाइल्ड बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। और जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन बच्चों के आप आई का मूवमेंट देखिए राइट साइड में, ये है ऑप्टिकल फ्लो की वजह से। आई ट्रैकर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसकी पुतली कहाँ देख रही है ये आप ऑप्टिकल फ्लो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि हम अब एक ही स्टडी में दोनों को करके बताएं कि आई ट्रैकर क्या दिखला रहा है और ये एल्गोरिथम क्या दिखला रहा है, ताकि वही लोग जिनके पास आई ट्रैकर नहीं है वह भी इस चीज को अपने एंड पर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो बिहेवियरल टूल्स और जो हमारे इंजीनियरिंग टूल्स हैं, इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स को अगर हम फ्यूज कर दें, मर्ज कर दें और फिर एक कंबाइंड टूल्स टेक्निक अगर हम डेवलप करें जो कि बिहेवियरल साइंसेस के रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सबके इस्तेमाल की चीज होगी। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज है ना, जो हम लोग नॉर्मल जो कर्टोसिस प्लॉट करते हैं, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन वाला जो कर्व है, ये बेसिकली यहाँ से ये जो पूरा ये जो आप कर्व देख रहे हैं, सॉरी ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये कर्व है जहाँ के आप नॉर्मल बच्चों का ये है रिस्पॉन्स पैटर्न। और ये देखिए जो डॉटेड लाइन है जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये है जो ऑटिज्म से ग्रसित जो बच्चे हैं उनका है। तो ये चीजें हम भी करते हैं ना, हम भी तो निकालते हैं कि 0.5 पे सिग्निफिकेंट है, 1 टेल्ड है, 2 टेल्ड है, सेम चीज है, वही चीज है ना। केवल हमने टेक्निक अलग अडॉप्ट किया, इस गोल तक पहुंचने के लिए हमने मार्ग अलग चुना। जाना हमको यूनिवर्सिटी ही था, हम दाहिने वाले रास्ते से नहीं, चौराहे से बाएं वाले रास्ते से आएंगे। तो ये बिहेवियरल और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट था जो हम लोगों ने देखा। लास्ट एक चीज मैं आपसे बहुत ब्रीफली, धनंजय जी मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूँ और क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दे सकते हैं, टाइम है। तो मैं एक चीज आपको ये दिखलाना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों ने क्या किया अभी तक, कि हमने बिहेवियरल डेटा को हम कैसे प्रोसेस करते हैं और उसी बिहेवियरल डेटा को हम आदमी का रिस्पॉन्स न लेकर के हम स्टिमुलस को ही अगर हम प्रोसेस करने लगे, जो कि ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में आपने देखा कि ह्यूमन रिस्पॉन्स नहीं था उसमें, प्योरली वो जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं उसकी प्रोसेसिंग थी। तो ये स्टिमुलस अगर इस बिहेवियर दिखलाने वाले इंसान को दिखलाया गया तो उसके दिमाग में क्या हुआ, है ना, न्यूरोलॉजिकली क्या हुई चीजें। अब हम आपको अपने एक नई टीम से अब हम वाकिफ कराते हैं। ये वाकिफ कराने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आप सारे यंग लोग जब आप करियर में आए ना, यंग करियर में, यंग डेज में, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है हम लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं किया है, जो करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप अपनी दहलीज को लांघिए, साइकोलॉजी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उन लोगों से इंटरेक्ट कीजिए जो आपकी भाषा नहीं समझते हैं। इंजीनियर्स आपकी भाषा नहीं समझते हैं, डॉक्टर्स आपकी भाषा नहीं समझते हैं, उनके टूल्स टेक्निक्स के साथ बैठिए, सेम रिसर्च प्रॉब्लम पर आप अपने टूल टेक्निक्स के साथ। याद रखिए स्टैटिस्टिक्स सेम है, वो भी वही इस्तेमाल करते हैं जो हम करते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना। मैथमेटिक्स वही है, स्टैटिस्टिक्स वही है, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं है ना। और रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए ये सब हिंदुस्तानी है, दो लोगों को छोड़कर इसमें। संजीव नारा स्पेन में रहते हैं, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है लेकिन इनके पीएचडी सुपरवाइजर जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट है। धीरज जो है ये नदर्न आयरलैंड में रहते हैं, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इनके पीएचडी सुपरवाइजर भी कंप्यूटर इंजीनियर थे। निकोला जो है वो स्पेनिश है, स्पेन में रहते हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, जिनको कि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक की बहुत अच्छी जानकारी है। वेस्ट में ये भी एक ट्रेंड है आजकल, साइकोलॉजी वाले इमेजिंग टेक्निक्स के में भी महारत रखते हैं। नाओमी ये नॉर्डियन कंट्री की है, कहाँ की है मुझे तो अभी नहीं याद। नाओमी अभी नदर्न आयरलैंड में काम करते हैं, ये भी बाय ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट है।
लेकिन इनकी भी अच्छी पकड़ है इमेजिंग साइंसेस पे। एक तो मैं हूँ, और फिर गिरिजेश प्रसाद जी बाय ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो इंडिया, स्पेन और नदर्न आयरलैंड का ये कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वालों का एक ग्रुप है, 6 लोगों का ग्रुप है ये। अब हम लोगों ने क्या किया ये देखिए। सेम जो आपने देखा था ना, वो लेफ्ट राइट एंगल वाले जो 5 एंगल वाले फोटोग्राफ्स थे, वो हम लोगों ने अब इस्तेमाल किया। लेकिन लेकिन ये लेकिन की बात की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है, शायद आपको भी लगे। साइकोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया, 5 अलग अलग एंगल थे, 4 अलग अलग एक्सप्रेसर थे, 6 अलग अलग इमोशन थे, है ना। लंबा चौड़ा कॉम्बिनेशन बना, और हर पार्टिसिपेंट को हम दिखला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इमोशन पहचानो और उसकी इंटेंसिटी बताओ। इमेजिंग के अपनी समस्या है। इमेजिंग में आप मल्टीपल स्टिमुलस यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जहां कहीं भी ब्रेन इमेजिंग यूज हुआ है, एमआरआई यूज हुआ है, पेट स्कैन इस्तेमाल हुआ है, हम लोगों ने इमेजी इस्तेमाल किया। इसमें एक लिमिटेशन है, आप बहुत लिमिटेड दायरे में ही आप स्टिमुलस दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो साइकोलॉजिकल साइंसेस के अपने फायदे हैं, अपने मेरिट्स हैं। तो जब आप बहुत महारत हासिल कर लेंगे अपने एरिया में ना, तो दूसरे एरिया वाले आपको अप्रोच करेंगे कि साहब आप, मैं कर रहा हूं, अब आप हमको इसमें सजेस्ट कीजिए कैसे करें, आप हमारे साथ जुड़िए। तो देखिए हम लोग इस, बिकॉज ये मशीन का लिमिटेशन है, इसीलिए हमने 6 इमोशन नहीं लिया, 2 इमोशन लिया, ठीक है, 5 एंगल लिए। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ, हमने बिहेवियरल स्टडी में यही इमेज जब अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखलाया था, तो एक पार्टिसिपेंट ने एक ही बार इमेज देखा था। यहाँ पर हम हर पार्टिसिपेंट को 16 बार वो इमेज दिखला रहे हैं, ठीक है, एक ब्लॉक में, और फिर 16 बार दूसरे ब्लॉक में, ठीक है। तो टोटल हम 32 बार एक ही इमेज को दिखला रहे हैं। अब हम साइकोलॉजी में अब तक क्या समझते थे कि भाई आप एक ही चीज को बार बार दिखलाएंगे तो स्टिमुलस से फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी, तो रिस्पॉन्स बायस आ जाएगा। ब्रेन स्टडीज ऐसा नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि जब आप ऐसा करेंगे और जब आप अनबायस्ड हिट रेट कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीजें एवरेज आउट हो जाएंगी, है ना। तो ये एक सीखने की चीज है हम साइकोलॉजिस्टों को उन लोगों से। दूसरी बात, हम लोग इस पर नहीं आएंगे, ये प्रोसेसिंग कैसे करते हैं इसको छोड़ दीजिए। बस अब मैं छोटे छोटे केवल 10-15 मिनट में आपको कंप्लीट करूंगा आपकी बात। जैसे हम लोगों ने क्या किया इस डेटा के साथ, हमने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस किया, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, मान लीजिए कि अभी ये जूम मीटिंग में हम अकेले बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बारी बारी से हम सर से कुछ पूछ रहे हैं, सर जब उनके उत्तर की प्रतीक्षा में हम चुप हो जा रहे हैं, मान लीजिए हम सब प्रतिभागी एक साथ बोलने लगे, तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये वाली बात किसकी थी, ये वाली आवाज किसकी है ना। तो हर एक सिग्नल को, क्योंकि ब्रेन अलग अलग सोर्सेज से सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो हर एक सिग्नल को हमको अगर अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो इसी के लिए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस इस्तेमाल होता है, ठीक है। यह टेक्निक बिल्कुल मैच करता है फैक्टर एनालिसिस से। फैक्टर एनालिसिस में याद कीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक आइटम लेते हैं, फिर दूसरा आइटम लेते हैं, तीसरा आइटम लेते हैं, सब पर आदमी रिस्पॉन्ड करता है, फिर हम एक एवरेज आउट उसको कर देते हैं ना, और इस तरह से हम फैक्टर लोड निकालते हैं। सो हर आइटम का एक फैक्टर लोड और क्रॉस लोड आता है ना, और फिर हम कहते हैं कि अगर 0.6 के ऊपर है तो रोबस्ट है, अगर उसका क्रॉस लोड 0.4 के नीचे है, यही हम लोग कहते हैं। सेम चीज एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस में, इसमें हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स की जगह केवल हम सिग्नल का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बस इतना ही फर्क, इतना ही फर्क है। और फिर बाकी ये फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, जो 2006 के पेपर से अभी तक हम मल्टीवेरिएट बार बार बोलते आ रहे हैं। तो आप देखिए स्टैटिस्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नाम का थोड़ा फर्क है, और इसीलिए हम लोगों के लिए फेमिलियर बन जाना इन चीजों से बहुत आसान है। इसी तरह से देखिए जेड स्कोर हम सब लोग जानते हैं, है ना। हम लोग कई बार हम सैंपल के रॉ स्कोर के बेसिस पर कंप्यूट नहीं करके हम जेड स्कोर के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, है ना। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम जानते हैं, और मल्टीवेरिएट में ही अगर हम जेड स्कोर को इस्तेमाल कर दिया हमने अगर स्कोरिंग पर्पस के लिए, तो वो जेड मल्टीवेरिएट नॉइज नॉर्मलाइजेशन, नॉइज बोलते हैं कि बेसिकली जो मल्टीपल सिग्नल है उसमें हम नॉइज को कम करते हैं। फिर से याद कीजिए सिग्नल डिटेक्शन थियरी, है ना, कि हमको नॉइज को हटाना है, सिग्नल को पकड़ना है ना। तो होता क्या है कि ब्रेन टेक्निक्स में
जब हम न्यूरोलॉजिकल डेटा को जब हम एक्वायर कर रहे हैं, जैसे हमने आंख पलक झपकाई, सांस लिया है ना, हमने ब्लिंक किया, कुछ भी हुआ, हिचकी आ गई, इन सबों से आर्टिफैक्ट जनरेट होता है। तो उन आर्टिफैक्ट्स को नॉर्मलाइज किया जाता है ना? तो एग्जैक्टली वही टेक्निक है जो वहां इस्तेमाल होता है। अब देखिए, एक चीज जो हम लोग साइकोलॉजिकल डेटा के बेसिस पर, बिहेवियरल डेटा के बेसिस पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने वो कोशिश की। ये देखिए, आप केवल ग्राफ देखिए, हर एक टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स है कि वो कितना रिस्पॉन्स था, और टाइम के साथ, ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये सेकंड में है, तो ये 0.2 का मतलब हो गया कि ये मिली सेकेंड हो गया। तो 0.2 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट था, 0.4 में कितना हुआ, 0.6 में कितना हुआ, 0.8 में कितना हुआ। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं दिखलाने को, मैं केवल इमेज दिखलाऊंगा आपको, बस थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूंगा कि स्टैटिस्टिकली भी ये वही चीज है, केवल हम उसको इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ, ये बताने के लिए कि केवल स्टैटिस्टिकल फिगर्स पे नहीं जाइए, है ना, ग्राफिकली भी चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। ग्राफिक्स आपको बहुत सारी चीजें एक पैटर्न के रूप में समझा सकता है। अब ये टेम्पोरल एनालिसिस है, ब्रेन में चीजें कैसे होती हैं, सीधा अब आप इस पर रहे, हैप्पी वर्सेस सैड, 5 एंगल, उनका कंपैरिजन है। जो आप ये देख रहे हैं ये है टेम्पोरल डिकोडिंग, है ना, कि लेफ्ट और सॉरी हैप्पी और सैड को टेम्पोरली कितने पर जाकर के आदमी डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि ये खुशी और उदासी का जो डिफरेंस है वो कितने मिली सेकेंड में डिफरेंस होता है। वही अगर आप टेम्पोरल जनरलाइजेशन अगर ब्रेन सिग्नल के रूप में करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हीट मैप जो आप देख रहे हैं, तो ग्रीन जहां जहां भी रेड होता जाएगा, इसका मतलब है कि वो एरिया ज्यादा प्रोसेस हुआ। जहां पर हैप्पी वर्सेस सैड का कंपैरिजन है 0 डिग्री, वहां कैसा था, 45 पे कैसा था। तो आपको स्टिमुलस क्या था वो देखिए, ये स्टिमुलस है जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये है जो ब्रेन में क्या चल रहा है, जो इमेजी स्कैन दिखला रहा है। और इसको जब आप यूजुअली प्लॉट करने के लिए, समझने के लिए करेंगे टाइम वर्सेस रिस्पॉन्स पे, तब वो इधर लेफ्ट वाला प्लॉट जो ग्राफ का है वो आएगा, केवल अलग अलग एंगल्स पर रहेंगे। हम लोगों ने ये फिर एक कोशिश की कि हम एक फील्ड अगर बनाए कि ब्रेन का वो कौन सा एरिया है ना, जिसको कि सोर्स जनरलाइजेशन बोलते हैं, इंजीनियर्स अपनी भाषा में इसको टोपोलॉजी बोलते हैं, कि क्लस्टर टोपोलॉजी है। हम लोगों की भाषा में ये बेसिकली ईआरपी आप सब जानते होंगे, उसी को एमईजी की भाषा में ईआरएफ बोलते हैं, इवेंट रिलेटेड फील्ड। मतलब ये दिमाग का वो एरिया है, वो फील्ड है जहाँ की सबसे ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये टोपो प्लॉट है, इसको छोड़ दीजिए, सॉफ्टवेयर करता है, आदमी नहीं करता है। अब इस पर आइए, टेम्पोरल डिफरेंस है ना, कि हैप्पी और सैड की जब प्रोसेसिंग हुई अलग अलग दिमाग में, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो हैप्पीनेस कैसे प्रोसेस होता है और सैडनेस कैसे प्रोसेस होता है। स्टिमुलस वही है जो हमने 5 डिफरेंट एंगल वाले निकाले थे। और ये फिर हम लोगों ने एक दूसरी स्टडी की, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए फिर से मैं अब लास्ट में अब अपनी एक बात कहना चाहूंगा, प्रीडोमिनेंटली स्टैटिक इमेजेस यूज हुए हैं साइकोलॉजी के रिसर्च में, और फ्रंट फेस इस्तेमाल हुआ है। ये जो पुरानी स्टडी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, ये बताता है कि फ्रंट फेस जो है ना, उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस आता है लेफ्ट और राइट पर। बिहेवियरल डेटा ने बताया कि -+45 और -+90, इन दोनों में भी डिफरेंस है। जब हमने न्यूरोलॉजिकल स्टडी किया तो पाया कि नहीं साहब, माइनस और प्लस का फर्क है, 45 और 90 का फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, जो चीज ज्योमेट्रिक एनालिसिस बता रहे थे कि डिफरेंस है ना, कंप्यूटर अपने इमेज पिक्सल बेसिस पे बता रहा था डिफरेंस है, न्यूरल साइंसेस के साथ जब हमने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि नहीं साहब, दिमाग वैसा नहीं सोचता है जैसा आपको कंप्यूटर बता रहा है। ठीक है, तो ये एक लर्निंग है ना, जो बिहेवियरल साइंस बताया वो सिस्टम साइंसेस ने कुछ पार्ट रिजेक्ट किया, कुछ पार्ट एक्सेप्ट किया। जो सिस्टम साइंसेस ने बताया वो न्यूरल साइंसेस ने कुछ पार्ट एक्सेप्ट किया, कुछ पार्ट रिजेक्ट किया। और ये फाइनल अभी की जो हमारी एनालिसिस है वो है, दरअसल एक प्री प्रिंट सर्वर होता है जहाँ की आप अपनी स्टडी को जर्नल में आने के पहले आप दे सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डाला है, वहाँ का ये आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको आप देखेंगे तो जो राइट साइड में इमेज लगा हुआ है, ये उस पेपर में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। लेफ्ट वाला तो आपके लिए बनाया हमने केवल। तो बेसिकली देखिए कि
0.4 मिली सेकेंड है ना, मतलब कि 4 मिली सेकेंड के दायरे में हम खुशी और दुख के बीच का डिफरेंस डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना? तो ये जो टेम्पोरल डिस्टिंक्शन है, ये हमको नहीं पता था बिहेवियरल स्टडी के बेसिस पर। इसका मतलब हुआ कि अब अगली बार अगर मुझे स्टडी डिजाइन करना हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोजर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए विजुअल स्टिमुलस का, यह भी इससे आप पता कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट चीज आपको, ये सोर्स रिकंस्ट्रक्शन है कि दिमाग के किस एरिया से वो चीज निकली, सोर्स रिकंस्ट्रक्शन है। तो हमने बिहेवियरल देखा, ज्योमेट्रिक देखा, न्यूरोलॉजिकल देखा, और अब हमारा ये लूप जो है वो बायो बिहेवियरल का पूरा हो गया। हमने बिहेवियरल साइंसेस से शुरू किया, सिस्टम साइंसेस पर गए, फिर हमने प्योर बायोलॉजिकल साइंसेस, न्यूरल साइंसेस पर आए, और फिर अब ये जो हमारा टूल है उसको ट्रिम करके अब हम प्योर बिहेवियरल स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टूल को सिस्टम साइंसेस वाले, मेडिकल साइंसेस वाले, न्यूरल साइंसेस वाले, साइकोलॉजिकल साइंसेस वाले, हर साइंस के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर किसी के खुद के टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने मटेरियल को हमने रोबस्टली हमने एस्टैब्लिश किया। यह भी समझने की जरूरत है, हमको यह भी समझने की जरूरत है कि देखिए, हम हम वो चीज नहीं करेंगे जो ट्रेडिशनली हमने अपने बीए एमए के दिनों में या पीएचडी के दिनों में सीखा है। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, एक डिस्कम्फर्ट इनवाइट कीजिए लाइफ में, और आपका डिस्कम्फर्ट आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, और आपका डिस्कम्फर्ट दूसरे डोमेन्स को हेल्प करेगा ग्रो करने में, क्योंकि उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वाले ये नहीं कर पा रहे थे, है ना? विजन रिसर्च वाले नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे फ्रैक्टल ज्योमेट्री के स्तर थे, न्यूक्लियर इंजीनियर वाले, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन साइकोलॉजी के साथ हाथ मिला करके इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। मैंने बहुत लंबा समय लिया, बट मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है, जबकि नई पीढ़ी के रिसर्चर्स सामने आ रहे हैं, तो मुझे इन तमाम बहुत से बड़े से कैनवास को मैंने पेश करने की कोशिश की। थोड़ा समय ज्यादा लिया धनंजय जी। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, तो मोस्ट वेलकम। हाँ सर, बिल्कुल इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही ये वर्कशॉप प्लान किया गया था कि हमारे जो फ्यूचर रिसर्चर हैं, जो अभी ट्रेनिंग में हैं, एमए और पीएचडी प्रोसेस का कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके सामने ये ऑप्शन है कि जो न्यू मेथडोलॉजीज है, जो न्यू अप्रोचेज हैं, वो अगर टेक्निकली या डिवाइस बेस्ड किसी भी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे मैं कहूँ कि अभी आपने जो बायो बिहेवियरल ट्रैजेक्टरी की बात की, जहाँ आपने एक पूरा कंप्लीट एक जर्नी पूरा किया, जहाँ बिहेवियरल, ज्योमेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और फिर बायो बिहेवियरल, इस तरह से और इतने सारे टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके हम कैसे उसको अप्लाइड फील्ड में किसी अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में या टूल डेवलपमेंट में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर, इस 1.5 घंटे के आपके लेक्चर पर मुझे बोलना बहुत शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं एक तरह से एक्सपर्ट भी नहीं उस एरिया का, लेकिन जो मैंने समझा है वो इस पूरे मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो हमारे वर्कशॉप का जो ऑब्जेक्टिव है, इतना एक्सीलेंट हो सकता था, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी, और मैंने खुद इससे बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। हम लोगों के मित्र के रूप में तो इंटरेक्शन होता है, बट एकेडमिकली हम लोग जो करते हैं शायद हम अवेयर होते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बल्कि ये कहूँगा कि आप हमारे भारत देश के लिए एक एसेट हैं जो आप डेवलप कर रहे हैं, और हमारे छात्रों को इससे सीखना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके जीवन में कोई ऐसी क्वेरी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सर से वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, so they are most welcome. If you have any query, I am inviting my participants to ask any query or any question or any plan. कुछ है? वैसे डॉक्टर साहब हमेशा उपलब्ध रहेंगे, आप डिपार्टमेंट ऑफ एचएसएस से ही करके, और वहाँ आप मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए, आता है तो उन चीज़ें बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई query कभी आगे भी अगर आप काम प्लान कर रहे हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हेल्प चाहते हो, तो मैं समझता हूँ हमेशा आप उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल मैं सर इस नोट के साथ आपको मैं किन शब्दों में आभार दूं, आभार और धन्यवाद शब्द कहना आपके इस पूरे एफर्ट को कम करना और कम आंकना होगा। फिर भी ये कुछ मौके की नजाकत भी होती है, तो अपने विभाग की ओर से और अपनी ओर से, विभाग अध्यक्ष की ओर से, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हमारी टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम, मेरे विश्वविद्यालय वाइस चांसलर और टीम जो हमारे पैटर्न,
उन सब की ओर से मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत दिन बाद मुझे इस तरह की चीजें सुनने को मिली। कभी अपने गुरुजी मंडल सर के मुंह से इस तरह की चीजें सुनने को मिलती थी और उसके बाद में बहुत दिनों के बाद मैं लगा पाती थी। और मेरे स्टूडेंट्स भी इस तरह से उन्होंने एक क्वालिटी डिलीवरी उन्होंने एंजॉय किया। तो इस इन शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सुधी श्रोता थे आप सब, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप कुछ सवाल भी पूछेंगे, फिर भी आपने सवाल नहीं पूछा। लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि पूरे दिन बैठकर सुनना अपने आप में एक चैलेंज है, खासतौर से जब 1.5 साल से हम लोग सब कुछ ऑनलाइन सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। बस मैं धनंजय सर को एक धन्यवाद देना चाहूंगा। आप एक बहुत बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने लोग होंगे सब लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा। और सर का आदेश था कि आपको आना है आज। और मैं एक चीज बताऊं कि जब मैंने आपका एक पैनल ऑफ स्पीकर्स देखा, जब आपने प्रोग्राम शेयर किया मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि डिपार्टमेंट में आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजर मिला जिसने एक इलीट पैनल बना करके आपके सामने रखा। और इस इलीट पैनल से श्योर है कि आप हर किसी की हर बात से सहमत नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए, एकेडमिक्स में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक यूनिक मौका है सीखने का, तो इस मौका को गवाइए नहीं, और बहुत ही यूनिक मौका है। और गोरखपुर की टीम के साथ बहुत सालों के बाद सेकंड टाइम मुझे ये मौका मिला अपने थॉट्स को शेयर करने का। बहुत पहले एक बार मैं आया था। तो धनंजय जी, आपको और आपके पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया एक बार मुझे फिर से वर्चुअली ही सही बट रूबरू होने का। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी रूबरू होते रहेंगे इस आशा के साथ कि आप समय देंगे अपने व्यस्तम समय में, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और वो तो इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे डिवाइसेस हमको देखने को मिलेंगे, खासकर अभी जो डिस्लेक्सिया वाले जो आपने आप लोगों ने डेवलप किया है अपनी टीम के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव डिलीवरी। अब मैं मीटिंग लीव हम कर लोग फिर सकता एक हूँ बार सर, मैं कहना इजाजत है मुझे? ऑफ कोर्स सर, यू कैन सर। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि वो 2:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे अगला सेशन, तो वो 5 मिनट पहले ही टाइम से आए और ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारे रिसोर्स पर्सन को टाइम से स्टार्ट करने में आसानी। तो मैं कहूँगा कि आप लोग 5-7 मिनट पहले ही सभी लोग ज्वाइन कर लें प्लीज। इस नोट के साथ हम लोग इस अभी के जो हमारी बैठक है, अभी का जो हमारा टाइम स्लॉट है, इसको हम लोग अभी लीव कर रहे हैं। देन अगेन वी विल मीट एट 2:30। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओके, पार्टिसिपेंट्स फॉर थैंक योर। यू।